Friends, I welcome all of you in the VK Scholar Education digital class in the subject of international business. So in this video I will discuss with you multiple choice question on international business. So these questions belongs to the June 2020 shift 1 question papers of commerce. So what are the questions which I have considered for explanation to you? The first question is EPRG framework in international business refers to. Okay, so basically you know that EPRG framework, the full form of EPRG framework is ethnocentrism, P stands for polycentric, R stands for regiocentric, and G stands for geocentric approach. Ethnocentric approach is known as home country orientations. Polycentric is known as host country orientation. Regiocentric is known as regional orientation, and geocentric is known as world orientation or global orientation. So this is world or global orientations. Okay, so in addition to that, the EPRG framework was first time discussed by Howard. It was discussed by Howard V. Perlmutter in 1969. Okay, so the credit goes to the Howard V. Perlmutter for creating EPRG framework in international business. So the exact answer of this question is ethnocentric, polycentric, regiocentric, and geocentric orientations. Okay, so what is the explanation? So what do you mean by ethnocentrism या ethnocentric approach which is known as home country orientations? तो सबसे पहले इस अप्रोच में क्या है कि जो इंटरनेशनल मैनेजर्स हैं, मान लीजिए इंडियन जो मैनेजर्स हैं, दे कंसिडर इंडियन कल्चर सुपीरियर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कल्चर्स. इसका मतलब क्या है कि जो इंडियन मैनेजर्स हैं दे थिंक दैट कि आवर वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ यूनिक and what business strategy is used in India, the same can be used in rest of the world. Okay, so managers believe in their own culture, so there is no cultural differences, and strongly single business strategy is used by managers to do business in rest of the world. Okay, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको एथनोसेंट्रिज्म का. ए नंबर ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन फॉरेन कंट्रीज, जैसे गारमेंट्स, फॉर एग्जांपल इंडियन सलवार कुर्ताज, शारीज, फूड आइटम्स, इंडियन फूड आइटम्स, डोसा मिक्स, इडली मिक्स, वड़ा मिक्स, सांबर, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इंडियन स्वीट्स. ओके, सो these products are sold in those countries where there is a large section of Indian populations resides. Okay, so basically Indian businesses concentrate in those foreign markets for selling Indian products in which there is a large section of Indian population is living. Okay, तो इसका मतलब क्या है कि जिस तरह का बिजनेस प्रैक्टिस हम इंडिया में करते हैं, सेम बिजनेस प्रैक्टिस के थ्रू इंडियन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में आसानी से बेच सकती है. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि देर इज ए सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी इज यूज्ड बाय मैनेजर्स एंड देर इज ए फुल कंट्रोल ऑन द बिजनेस अफेयर्स बाय द होम कंट्री मैनेजर्स. So this is the ethnocentrism approach.
दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जापानीज पीपल, दे आर हाईली बिलीव इन देयर ओन कल्चर, सो दे थिंक दैट whatever business strategy is used in Japan for doing business, the same business strategy can be used in rest of the world. Okay, so this is the ethnocentrism approach. Polycentric is host country orientations. So this is host country orientations. International managers recognizes there is a lot of cultural differences among home country and several host countries. Every country's culture is unique in itself. सो जो बिजनेस स्ट्रैटेजी होम कंट्री में लागू होती है, दस दैट बिजनेस स्ट्रैटेजी कैन नॉट वर्क इन होस्ट कंट्री. तो इसलिए देर इज ए ग्रेटर डिग्री ऑफ अडेप्टेशन एज पर टू दी होस्ट कंट्रीज बिजनेस एनवायरमेंट. ओके, क्योंकि होस्ट कंट्री का अपना एक सेपरेट पॉलिटिकल, कल्चरल, लीगल, इकोनॉमिक एनवायरमेंट होता है, एक सेपरेट कंज्यूमर बिहेवियर होता है, एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है. सो इसलिए एज पर पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर्स डू बिजनेस इन होस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट ऑफ दैट कंट्री ओनली. ओके, जो बिजनेस स्ट्रैटेजी होम कंट्री में काम करती है, सेम बिजनेस स्ट्रैटेजी को होस्ट कंट्री में लागू नहीं किया जा सकता. ओके, so there is a greater degree of decentralization of business activities in the polycentric orientations. ओके, तो एथनोसेंट्रिज्म में मैंने क्या कहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बट इन द पॉलीसेंट्रिज्म decentralization of business activities is the highest under this host country orientations. Next is regiocentric. This approach consider a particular region as a single common market. जैसे यूरोपियन यूनियन में भी कंसिडर्ड एज ए रीजन. पूरे यूरोप को एक रीजन कंसिडर किया जा सकता है, साउथ एशिया को दूसरा रीजन कंसिडर किया जा सकता है. तो एक रीजन में जो बिजनेस स्ट्रैटेजी काम करती है, दैट बिजनेस स्ट्रैटेजी कैन नॉट वर्क इन अनदर रीजन. ओके, तो एक रीजन में दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ का एक ग्रुप हो सकता है, और उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में हम सेम बिजनेस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मैकडी स्ट्रैटेजी टू डू बिजनेस इन मिडल ईस्ट कंट्रीज इज़ डैट कि मैकडी जो है पोर्क जो है वो नहीं बेचता, और जो भी मीट का प्रिपरेशन होता है वो हलाल प्रोसेस के थ्रू किया जाता है. बिकॉज़ मुस्लिम कंट्रीज़ में जो मीट का जो कंजम्पशन है, वही मीट कंज्यूम किया जाता है जिसका प्रिपरेशन एक मुस्लिम प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसको हलाल प्रोसेस बोलते हैं. तो इसलिए मैकडी जो है हलाल प्रोसेस के थ्रू मीट प्रोडक्ट्स को मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में बेचता है. ओके, तो उसका जो फोकस किसके ऊपर होता है, मुस्लिम कंज्यूमर्स के ऊपर, तो उसको रिजियोसेंट्रिक बोलते हैं. जियोसेंट्रिज्म क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट के रूप में कंसिडर किया जाता है. ठीक है, सो एक ग्लोबल बिजनेस प्रोग्राम, एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल बिजनेस प्रोग्राम की मदद से पूरे वर्ल्ड के कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई किया जाता है. ओके, इसका जो एग्जांपल है जियोसेंट्रिज्म अप्रोच का, द हैरी पॉटर सीरीज ऑफ बुक्स इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन. ओके, बिकॉज J.K. रोलिंग हु इज़ द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज, उसका कंसंट्रेशन किसके ऊपर है, ग्लोबल रीडर्स के ऊपर है, और एक स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो पूरे वर्ल्ड की मार्केट को सर्व करती है. सो दिस इज जियोसेंट्रिक अप्रोच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आसियान इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. सो द हेडक्वार्टर जो है करंटली इज लोकेटेड इन जकार्ता, इंडोनेशिया. तो करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया. तो इसके क्या बैकग्राउंड क्या है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक बाय 5 रीजनल मेंबर कंट्रीज, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. ओके, तो इसके लिए आप जो है वर्ड जो है यूज कर सकते हैं, दैट इज ये जो 5 जो है फाउंडिंग मेंबर हैं आसियान के, उसके बाद
बर्नोई ने इसको ज्वाइन किया 1984 में, वियतनाम ने 1995 में, लाओ पीडीआर एंड म्यांमार ने 1997 में, और 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया ने इसको ज्वाइन किया था। तो इन टोटल देर आर 10 मेंबर स्टेट्स ऑफ आसियान as of now. Okay, so it was the second question. So the third question is, Mercosur, a South American trade bloc, is an example of common market. So this is an example of common market. So इसको आपने वापस बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ, पीछे से आगे की तरफ आना है। सो जैसे आपने क्या करना है, मर्कोशूर साउदर्न कॉमन मार्केट, ओके, it is a South American trade bloc. Okay, it was created in 1991. So it was created by 4 member countries: Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay. Okay, so being a common market, इसमें 3 फीचर्स होती हैं। हम पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कॉमन मार्केट की 3 फीचर्स क्या होती हैं। नो इंटरनल टैरिफ अमंग मेंबर स्टेट्स, और member states adopt a common external tariff policy with respect to the non member। जैसे इंडिया मर्कोशूर का मेंबर नहीं है, तो ये चारों जो कंट्री हैं मिलकर एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी क्रिएट करते हैं फॉर इंडिया, क्योंकि बिकॉज इंडिया इज ए नॉन मेंबर स्टेट्स टू दी मर्कोशूर, एंड देर इज ए फ्रीडम ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स, labor movement and technology transfer. Okay, so there are 3 features, first, 2 and this is the third features. Okay, so it was all about on international business in this video. Okay, thank you very much.